Assalamu alaikum viewers. So today I am going to tell you about the scope of BS English Linguistics. Many of the students are confused to know that what is linguistics and what is the scope of linguistics. So let's move toward the definition first. That what is linguistics? Linguistics can be defined as a scientific or systematic study of language. It is a scientific study, means that we use the scientific methods to study the linguistics. For example, there are experiments to test how to pronounce this word, or for example, you have studied biology. If we study a theory, we first of all make observation, hypothesis, then we test our theory. It is same like that. Linguistics is same like biology, the thesis and the hypothesis of biology. Or we can say that it is also the systematic study. There is a system to study or pronounce the word in a linguistics. It is a science in the sense that it scientifically studies the rules, systems, and principles of human language. That what is the rule to pronounce this word? What would be the system and what would the principle of this word, this specific word that we are going to pronounce? Now let me tell you in Urdu language कि लिंग्विस्टिक्स क्या है. लिंग्विस्टिक्स असल में एक साइंटिफिक स्टडी है और सिस्टमेटिक स्टडी भी है. साइंटिफिक स्टडी कैसे है कि जैसे हम बायो में पढ़ते हैं, कोई अगर हम थ्योरी बनाएं तो उससे पहले हम ऑब्ज़र्व करेंगे, हम उसके हाइपोथेसिस बनाएंगे, टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको प्रूव करेंगे. सिमिलरली लाइक दैट इसी में अगर हम कोई थ्योरी अगर लें लिंग्विस्टिक्स में, फॉर एग्जांपल देयर आर मैनी ऑफ द थ्योरीज, बिहेवियरल थ्योरी इज़ देयर. तो उसको बिहेवियरल थ्योरी में क्या करते हैं कि इमिटेट करते हैं बच्चे, अपने पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं या तो वो अपने सिबलिंग्स को इमिटेट करते हैं. इसी तरह इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम बच्चों के ऊपर हम टेस्ट ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा है या नहीं. अगर ये ज़्यादा बच्चों के ऊपर प्रूव हो गया तो हम इस थ्योरी को मान लेंगे. इसलिए लिंग्विस्टिक्स को हम साइंटिफिक स्टडी बोलते हैं. Now, what are the two main purposes of linguistics? One is that it studies the nature of language and tries to establish a theory of language and describes languages in the light of the theory established. It studies the nature of language, that how the specific word of the language evolved, like from where that specific word evolved. Let me tell you another theory. For example, there is a Bow Wow theory, and there is also in ancient times people were not aware of the language, that what's their primitive language or what is the origin of their language. They were not aware that which word they should pronounce or which word they should utter from their mouth to convey their message to the next member. Then they made like chunks of the words and then made a theory that now this is our language. अब मैं आपको उर्दू में बताती हूँ कि मतलब क्या है इसका, कि नेचर ऑफ लैंग्वेज इसमें स्टडी करते हैं हम कि जो पुराने वक्तों में लैंग्वेज नहीं होती थी. उन्होंने जो पुराने, जैसे हम जंगलों में कह सकते हैं कि वहाँ पर लैंग्वेज इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी, तो वो क्या करते थे, आपस में सिर्फ चंक्स ऑफ वर्ड्स बोलते होते थे ताकि उनका मैसेज कन्वे हो जाए दूसरे बंदे की तरफ. और इसलिए उन्होंने बोला कि लेट्स मेक अ लैंग्वेज. फिर वो लैंग्वेज बना देते हैं उन वर्ड से जो कि उनको समझ आती हैं. इसी तरह लैंग्वेज बनते एक लैंग्वेज ऐसी बनी कि जो सबको समझ आएगी. इस तरह लैंग्वेजेस बनती गई. और लिंग्विस्टिक्स में हम ऐसे करते हैं, हम लैंग्वेज की नेचर को समझते हैं और किस तरह से वो लैंग्वेज इवॉल्व हुई है, थेरीज पढ़ते हैं हम उनकी. The other is that it examines all the forms of language in general and seeks a scientific understanding of the ways in which it is organized. Now, I have told you already that it is a scientific understanding. उसकी theories को और उसकी observations जो है उनको हम scientific way में study करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि that we are using the proper language which is comprehensive for the next member who is listening. Now, what is the use of linguistics for a student of language and for a teacher of foreign languages? Two people can take benefit by studying linguistics. One is the student and the other is the teacher of foreign languages. First of all, we will talk about the student, that how the student can take benefit from by studying the linguistics. To know the general properties of language can help the student to have an overview of human language. अब अगर एक स्टूडेंट पढ़ेगा लिंग्विस्टिक्स को तो उसे पता चल जाएगा कि इस लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज़ क्या है. नाउ देयर आर मोर देन 3 to 4 लैंग्वेजेस एंड मैनी ऑफ द पीपल हैव कमांड ओवर मैनी ऑफ द लैंग्वेजेस.
और इसलिए उसे पता चल जाएगा इस लैंग्वेज की क्या प्रॉपर्टी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी मैं उसे ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। और जो स्टूडेंट अगर लैंग्वेज सीख भी जाए तो वो अननेसेसरी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, लाइक हाउ वुड इट बी प्रोनाउंस्ड। वो लिंग्विस्टिक्स पढ़ने से उसे खुद ही पता चल जाएगा कि इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है और इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है और इस वर्ड का ओरिजिन क्या है, इसका रूट वर्ड क्या है। सब कुछ लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा और वो ऐसे फजूल किस्म के सवाल किसी और से नहीं पूछेगा और उसे किसी और से हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। नाउ व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्टडिंग अ लिंग्विस्टिक्स फॉर अ टीचर ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। अब टीचर ऑफ फॉरेन लैंग्वेज क्या करेगा, क्योंकि देयर आर मैनी ऑफ द एक्सेंट एंड डायलेक्ट्स इन फॉरेन लैंग्वेज एंड द टीचर ऑफ लिंग्विस्टिक्स must be aware of the accent in the city in which he is moving around, he or she is moving around. He will definitely benefit a great deal from the knowledge of linguistics. He will learn about not only how language is pronounced or structured. यही बात मैंने पहले भी की है कि टीचर को पता होगा कि वो लर्न करेगा पढ़ते पढ़ते भी और पढ़ाते भी कि इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, लाइक व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ड, कि सबसे पहले ये वर्ड कहाँ पर बोला जाता था। नाउ इट हैज़ माइग्रेटेड, दिस वर्ड हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम its original country to all over the world. It has migrated from its original country to all over the world. But also how it should be presented to learners. और उसको ये भी पता होगा कि वो ये specific word learners के सामने कैसे मैंने present करना है. He will know not only how each level of the language system is related to other levels. Now there are levels of linguistics. For example, there is a level morphology, phonetics, semantics, stylistics. Many of the levels are there. But also how language is closely related to many things outside itself, such as the mind, the brain, and society, among other things. Now this is a very important thing, that how language is related to the mind, the brain, and the society. हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हम उस सोसाइटी की लैंग्वेज सीख लेते हैं। अगर जल्दी ना भी सीखें, इफ़ वी आर डल स्टूडेंट और वी आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट टू ग्रैस्प द लैंग्वेज ऑफ दैट सोसाइटी, हम आहिस्ता आहिस्ता भी सीख लेते हैं लेकिन हम सीख लेते हैं। सो देर इज़ अ रिलेशन ऑफ सोसाइटी इन देयर। माइंड का भी है, ब्रेन का भी है। हमारे माइंड में और ब्रेन में वर्ड होगा तो हम बोलेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू अटर दैट वर्ड। नाउ व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। देर इज़ अ माइक्रो लिंग्विस्टिक्स एंड देर इज़ अ मैक्रो लिंग्विस्टिक्स। माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, फोनेटिक्स स्टडी करते हैं, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। And I will tell you about all these terms in next slides. And now what is macrolinguistics? In macrolinguistics we study sociolinguistics, psycholinguistics, neurolinguistics, stylistic discourse analysis, cognitive linguistics. Okay, now first of all I will tell you about the microlinguistics and what is phonetics. Phonetics is a scientific study of speech sounds. It studies how speech sounds are articulated, transmitted, and received. It is a scientific study of speech sounds, how this word can be pronounced. इसमें हम ये पढ़ते हैं phonetics में कि ये वर्ड हमने प्रोनाउंस कैसे करना है, आर्टिकुलेट कैसे करना है, आर्टिकुलेट मतलब अटर कैसे करना है, ट्रांसमिट कैसे करना है कि दूसरे बंदे तक हमने कैसे पहुंचाना है, और रिसीव कैसे करना है कि अगर कोई दूसरा बंदा कोई वर्ड बोल रहा है तो हमारे कानों तक वो कैसे पहुंचेगा। It is a function of phonetics to articulate that word, to transmit that word, and to receive that word. Now what is phonology? Phonology is the study of how speech sounds function in a language. अब हमने इसमें ये बताना है कि जो हमने वर्ड बोला है उसका फंक्शन क्या है, वो हमारी लैंग्वेज में फंक्शन कैसे करेगा, दैट हाउ शुड वी पुट दैट वर्ड इन आवर लैंग्वेज। इट स्टडीज द वेज स्पीच साउंड आर ऑर्गेनाइज्ड, कि ये वर्ड जो है इसकी साउंड जो है इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इसकी साउंड हम देखे बगैर नहीं बोलेंगे कि अगर ये अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये इस तरह से प्रोनाउंस हो जाएगा। नो, वी विल सी द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दैट वर्ड, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमने इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है। It can be seen as a functional phonetics of a particular language. Now move toward the morphology. Morphology is the study of the formation of words. Word कैसे बना है, we look at the root of that word. For example, now there is a microlinguistics. Now we know that
दिस लिंग्विस्टिक्स इज द रूट वर्ड ऑफ माइक्रो लिंग्विस्टिक्स. अगर लिंग्विस्टिक्स नहीं है तो फिर माइक्रो का भी कोई काम नहीं है यहाँ पर. बोथ ऑफ द वर्ड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड दिस इज द और माइक्रो और मॉर्फोलॉजी यही स्टडी करती है कि वर्ड्स हाउ वर्ड्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, के उनका ओरिजिन कैसे है, उनका रूट वर्ड क्या है, उनकी बेस क्या है. उनकी बेस को स्टडी करना मॉर्फोलॉजी का काम होता है. अब सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स डील्स विद द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इनटू फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस. अब इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. कि सबसे पहले हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट इज ही एंड शी. Verb is, are, am, or what any other thing that you can add. And object क्या है? Any of the object or like book. She is reading book. It is the function of syntax to check whether this sentence is correct or not. Now what is semantics? Semantics is a branch of linguistics which is concerned with the study of meaning in all its formal aspects. अब semantics में हम क्या देखते हैं कि उसमें हम मीनिंग देखते हैं सेंटेंस का. पूरे सेंटेंस का मीनिंग कुछ बन भी रहा है या नहीं, whether there is a meaning of that word or not. Pragmatics क्या है? Pragmatics can be defined as a study of language in its use. It deals with how speakers use language in ways which cannot be predicted from linguistic knowledge. Pragmatics में हम क्या स्टडी करते हैं कि अगर हमें किसी इंसान ने बोला है कोई वर्ड, तो हमें उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा, जाहिर बात है. बट देर इज़ अ प्रैग्मेटिक्स में थोड़ा सा उलट हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इसकी कि सर्दियां हैं, एक बंदा अंदर बैठा हुआ है, बाहर से कोई आया, उसने पूरा दरवाज़ा खोल दिया. एंड द पर्सन विच इज़ सिटिंग इन साइड द रूम, ही इज सेइंग द आउटसाइडर दैट open that door, कि दरवाज़ा और खोल दो. We understand that he wants to say that close the door please, why are you opening this door, because there is a winter season. To understand the context of that sentence, कि वो किस context में बोल रहा है, and you just have to understand कि वो कहना क्या चाह रहा है. असल में उसका ये मतलब नहीं होता कि दरवाज़ा खोल दो पूरा, उसका मतलब ये है कि दरवाज़ा बंद कर दो. नाउ व्हाट इज़ मैक्रो लिंग्विस्टिक्स? मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? सोशल लिंग्विस्टिक्स स्टडी करते हैं, साइको लिंग्विस्टिक्स एंड स्टाइलिस्टिक्स. सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या है? इट स्टडीज द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी. व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी? ये बात हमने पहले भी की है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हम उस सोसाइटी की लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के कुछ सिटीज़ की ले लेते हैं. लाहौर में जो लोग रहते हैं उसकी जो एक्सेंट और डायलेक्ट होगा लाहौर के लोगों का, उनका डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू द पीपल हु आर लिविंग इन कराची और हु आर लिविंग इन एनी अदर सिटी. कि उनका एक्सेंट कैसा होगा, उन बोलने का लहजा कैसा होगा, उनका स्टाइल कैसा होगा, बहुत डिफरेंट होते हैं. सो इट मीन्स दैट सोसाइटी इफेक्ट्स अवर लैंग्वेज एंड वी कैन से दैट लैंग्वेज इफेक्ट्स अवर सोसाइटी एज वेल. Now what is psycholinguistics? Psycholinguistics is the study of language and mind. और psycholinguistics में हम क्या स्टडी करते हैं? The relation between our language and mind. That what is the capacity of our mind to grasp that language, to grasp that word. कि हमारे माइंड में ये वर्ड आ सकेगा और क्या हम ये लैंग्वेज सीख सकते हैं? कोई भी स्पेसिफिक लैंग्वेज अगर सीखनी हो, सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज होती है और एक सेकंड लैंग्वेज होती है. फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है? जो हम अपने पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं, जो हमें खुद ब खुद आ जाती है. अगर हम सोसाइटी में रहे तो हमें साथ साथ आती जाएगी. बट द सेकंड लैंग्वेज जो होती है वो हमें सोसाइटी से या हमें स्कूल से ग्रास्प करनी पड़ती है. वो हमारी सेकंड लैंग्वेज होती है, उसको हम लर्न करते हैं. स्टाइलिस्टिक्स क्या है? स्टाइलिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ literary effects can be related to linguistics features. It usually refers to the study of written language including literary text, but it also investigates spoken language sentiments sometimes. Stylistics में हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं that what are the literary techniques are used by the writer. For example, metaphor हो गया, simile हो गई, ओनोमेटोपिया और बहुत सी लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि राइटर ने अपने सेंटिमेंट्स को कैसे हम रीडर्स के सामने पेश किया है. नाउ द लास्ट थिंग इज दैट विच वी स्टडी इन माइक्रो लिंग्विस्टिक्स इज डिस्कोर्स एनालिसिस. व्हाट इज डिस्कोर्स एनालिसिस? वी कैन से इट आल्सो एज टेक्स्ट लिंग्विस्टिक्स. Text linguistics is a study of the relationship between language and the context in which language is used. इसमें हम क्या स्टडी करते हैं?
डायलॉग्स हम चेक करते हैं, वी ऑब्जर्व द डायलॉग्स ऑफ अ पर्सन हु इज़ स्पीकिंग। फॉर एग्जांपल हम डॉक्यूमेंट्री देख लेते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे डॉक्यूमेंट्री जो लगी होती है, द कन्वर्सेशन बिटवीन द टू मेंबर्स, उनके दरमियान की हम कन्वर्सेशन को नोट करते हैं कि हाउ दे आर प्रेजेंटिंग देयर व्यू पॉइंट, what are the expressions when they were talking about the serious issues, when they were talking about any of the funny comment or any other thing। हम उनके एक्सप्रेशंस देखते हैं, हम उनके व्यूज़ देखते हैं, और ये सब हम डिस्कोर्स एनालिसिस में चेक करते हैं। दैट वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप दैट यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स। वी स्टडी लाइक अगर हम जॉब्स की बात करें कि हम लिंग्विस्टिक्स पढ़ के क्या क्या जॉब्स कर सकते हैं, देयर आर द मैनी ऑफ द जॉब्स दैट यू गेट बाय होल्डिंग द डिग्री ऑफ लिंग्विस्टिक्स। फॉर एग्जांपल आपने CIT तो देखा ही होगा, उसमें अगर हमें किसी की अटरेंस को हमने देखना है कि ये कि उसकी अटरेंस को देखते हैं कि ये बंदा लैंग्वेज कैसे बोल रहा है और दूसरा बंदा लैंग्वेज कैसे बोल रहा है। उसमें हम उसकी एक्सेंट को देखेंगे, एक्सेंट को चेक करेंगे कि इसका एक्सेंट मैच कर रहा है दूसरे के साथ या नहीं कर रहा। और इसकी साइकोलिंग्विस्टिक्स भी, इसकी भी काफ़ी स्कोप है इसका, कि उसमें हम माइंड देखते हैं। अगर इंसान को कुछ चीज़ भूल गई है तो हम उसकी एबिलिटी देख सकते हैं कि इसके माइंड में ये सब कब से चल रहा है, या अगर उसके माइंड में अगर कुछ टेंशन वगैरह है तो हम उसके माइंड को स्टडी करके देख सकते हैं कि इसके माइंड के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो इस लैंग्वेज को या कोई इससे हम अगर कोई बात करेंगे तो वो उसको अडॉप्ट कर सकेगा या नहीं। और साइकोलिंग्विस्टिक्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि घर में भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। कोई भी अगर न्यू बॉर्न बेबी है उसको हम लैंग्वेज कैसे पढ़ा सकते हैं, और उसके अंदर कितनी एबिलिटी होगी कि कितनी लैंग्वेजेस को वो एक्वायर करेगा, कितनी लैंग्वेजेस को सीख सकेगा और कितनी को नहीं सीख सकेगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।